आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और इसको लेकर संबोधित कर रहे हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये मेडिकल इंस्टीट्यूट ज्यादा कोई थे नहीं उस टाइम। देयर वाज नो रिकॉग्निशन ऑफ एंड द प्रायोरिटी ऑफ मेंटल हेल्थ। डॉक्टर शिव गौतम वाज अ डोयन हियर इन राजस्थान and he's been laboriously working very hard, and thank you Dr. Shiv Gautam that आपने जो आज हमें मेंटल हेल्थ के ऊपर आपने हमें जो डिस्कोर्स दिया है with all your knowledge, I'm sure we all have a lot to learn from him. Also Dr. Joanna and Mrs. Parashar, thank you for your valuable advice, comments and know-how on this subject which you shared with us. And of course, in a mini form, we had the teachings of Sadhguru also here by Dr. Amrish ji, he is a Bhakt of Sadhguru, and lot of things, teachings which he has learnt, he shared with us. Thank you Amrish ji. And कई सुझाव जो आए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत आभार. It will further make our department more sensitive to issues relating to mental health and how to उसका जो उपचार जो करना है उसके लिए भी. बेसिकली भगवान ने जो हमें शरीर बनाया है, गॉड हैज मेड आवर बॉडी माइंड initially for a different cause. The eyes were to see long distances, not close. Man was a hunter. His body was tuned, his diet was tuned to high physical activity. And we soon realized, with the world pace becoming so fast, with food which is not so natural and not so pure what our ancestors ate, with the hard-pressed tension of securing a job, and the computers and the scientific innovations all led, this is what I feel, have led to the whole equilibrium has been disturbed, the mind and body equilibrium. And the youth today particularly, emotional ties have also taken a big toll. पहले तो परिवार होता था, वहां पे माँ बाप जो कहते थे, mother and father, they were the head of the family. They used to, whether they had 5 sons and 5 daughter-in-laws, whatever the mother father said, that used to be accepted as the final judgment or decision. So there was no squabbling or there were no tensions. Now tensions have become, and social media, all these latest movies, and they have had a very major influence on our mental health. Now basically I would like to, it's a very personal matter, but since I'm sitting with you and we are talking about mental health, I would like to share my own experience. Why I would like to share my own experience is that, in this discourse, everybody's discussed everything. My profession, my livelihood was on tourism. Been running my hotels for many years. That time I took very heavy borrowings from institutions. Us time foreign tourists was the main tourism in India. I'm talking to you about 1995. Took big loans. Then suddenly the plague came. Tourism became zero. Then the Babri Masjid demolition came. Tourism became zero. Multiple such incidents happened. And I was struggling very hard. I did not know how to pay my loans. I was borrowing from X to pay Y and Y to pay the loans. So my whole system came crashing down. And सबसे पहले क्या है कि the awareness that you are having a mental problem, it's not a shame. People take it as a shame. And the stigma was that if you go and meet a psychiatrist and somebody sees you there, वो कहते हैं कि this guy has gone mad. This was in those days what people felt.
And therefore, to shy away from this, I never went to a psychiatrist. And again, your digestion goes for a toss, you can't sleep. And mind is such a strong tool of the body. अभी आपके दोस्तों के साथ you've just gone out for dinner, you had a good evening, and you come back home in your flat, and you have a problem on the phone with your girlfriend. वो कहती है मैं छोड़ के चली जाऊंगी, I don't want to be with you. And the mind immediately in a few minutes from happy moments of partying and going out for a movie with your friends and coming back, you suddenly get these emotional weaknesses and you hang yourself from the fan in a flat. It just happens. Look at road rage. लड़ाई किस बात की है? थोड़ी गाड़ी अड़ गई, यहाँ अड़ गई. And people are ready, they kill each other on the road. So these are all mental abnormalities which we are not able to control because of all these bad health, mind equilibrium, body equilibrium being this thing. So finally, I used to, for 3-4 years, I suffered like mad because I refused to go to a psychiatrist. Then finally, I met a friend who had gone through the same. And he told me that I'm cured and I'm fine and I'm leading a normal life. I said, how? He said, I went to this psychiatrist. उस time, अब वो हमारे प्रिंसिपल भी रहते, he is of our medical, अपने mental इसका डॉक्टर प्रदीप शर्मा. So he took me to Pradeep Sharma. मैं शाम के time गया when it was getting a little dark, so nobody saw me going there, and otherwise, that feeling was that कि psychiatrist क्या कोई मिल गया कि ये पागल हो गया. I went there. He gave me medicines, and of course medicines have their own chemical reactions. There are a lot of side effects also. Maybe now there are drugs which don't give you side effects. And the side effects, after 2 weeks I would leave it. Then again get miserable after another month, go again to him. Finally after about 6-7 months I was not getting okay. He told me, he said, look, you're wasting your money, you're wasting my time. Either you trusted me, give me 6 months. Otherwise, don't come back to me again. And I was so miserable that I decided those 6 months I'm going to somehow, whatever may happen, I'm going to have those medicines. After 6 months, I became absolutely normal. I'm talking to you about 1995. In 1998, I was okay, and I contested my first election as an independent. And by God's grace, my party's hand on me, I got my ticket 5 times and I won 4 times. And out of the 4 times, I became minister 3 times. Because I was able to pull myself back. वो नहीं होता तो मैं 1998 में भी चुनाव नहीं लड़ता, और मैं पॉलिटिकल. चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि। मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर अखिलेश ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सैफई स्थित समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अखिलेश यादव ने परिवार के साथ पुष्प अर्पित किए और कहा, जो लोग दिल्ली का रास्ता नहीं जानते थे उन्होंने बना दिया सांसद। रामगोपाल यादव ने उनके योगदान को याद किया। समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तो मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि और आज उन्हें पुष्प अर्पित किए अखिलेश यादव ने। साथ में जो है अन्य पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी पहुंचे थे और उनके योगदान को याद किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर। डेरा सच्चा सौदा सत्संग के लिए बसें भिजवाने के मामले में अधूरी कार्रवाई। रोडवेज अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह राणा निलंबित, लेकिन दीपक भोविया बचा है। दरअसल डेरा सच्चा सौदा के लिए बिना आकस्मिक अनुबंध बसें भिजवाने का था ये पूरा मामला। बिना अनुमति, फर्जी तरीके से अनुमति जारी कर बसें ले जाने के आरोप हैं। ऑडिट टीम ने गंगानगर आगर में जाकर खुला दस्तावेज गायब होने के सबूत पाए हैं, जिसमें अनूपगढ़ डिपो में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र पाल निलंबित, जबकि गंगानगर डिपो के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक दीपक भोविया को
बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी नरेंद्र राणा के निलंबित होने के बाद सवाल उठे, कई सवाल यहां पर खड़े हुए। क्या दीपक भोविया के खिलाफ भी होगी कार्रवाई? तो ये अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नरेंद्र राणा के निलंबित होने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या अब दीपक भोविया के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? तो जयपुर से ये खबर आपको बता दें। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, डेरा सच्चा सौदा सत्संग के लिए बसें भिजवाने के मामले में अधूरी कार्रवाई जो है देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए बिल्कुल पूनम, पिछले कुछ दिन पहले लगभग 1 साल के आसपास की बात हो गई। डेरा सच्चा सौदा में राजस्थान रोडवेज की बस है वो लगाई गई थी, जिसकी जो तय जो प्रक्रिया है उसकी पालना नहीं की गई थी और जो तत्कालीन जो गंगानगर डिपो के जो अधिकारी हैं वो उन बसों को डेरा सच्चा सौदा के लिए भेज दिए थे। ये एक बड़ी जो लापरवाही है और साथ ही साथ एक जो भ्रष्टाचार है वो भी इस तरह के मामलों में सामने आता है। इसको लेकर रोडवेज मुख्यालय तक एक शिकायत पहुंची, इसके बाद जांच की गई। जांच के बाद जो है इसमें अभी तक पूरी जो लापरवाही में मुख्य आरोपी तत्कालीन जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो मुख्य प्रबंधक थे गंगानगर डिपो के, दीपक भोपिया, उन पर जो मुख्य आरोपी के जो सवाल उठ रहे थे कि मुख्य आरोपी यही है, साथ ही साथ एक और जो रोडवेज के अधिकारी है नरेंद्र पाल सिंह राणा वो थे। तो अभी पिछले दिनों जांच पूरी हुई, उसके ऑडिट रिपोर्ट आई, उसमें साफ तौर पर ये पाया गया कि ये बसें हैं बिना किसी प्रक्रिया के लगाई गई थी। तो नरेंद्र पाल सिंह राणा को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी दीपक है, तत्कालीन जो मुख्य प्रबंधक रहा था, उस मुख्य आरोपी को अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या आधी अधूरी कार्रवाई करके लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है रोडवेज के द्वारा, या फिर कोई आगे भी मिलीभगत जैसे कोई बात है। आखिर क्यों नहीं दीपक भोपिया पर कार्रवाई हुई है, क्योंकि मुख्य आरोपी इसी को बताया जा रहा है। गंगानगर डिपो से वो बस निकली थी और उस टाइम मुख्य प्रबंधक भी यही था। तो ये साफ तौर पर सवाल है, हो सकता है कि अब रोडवेज जो प्रशासन है जो सवाल उठ रहे हैं इन पर ध्यान दे और जल्दी वापस से जांच करके जो मुख्य आरोपी है बिल्कुल उस पर भी सुनील कार्रवाई। जी बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। हरियाणा में दलित आईपीएस की सुसाइड के बाद देश भर में बहस छिड़ गई है। राजस्थान से मेहता सिटी पुष्टिकरण मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी दलितों के इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। जूली ने कहा कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में दलित समुदाय का व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे स्थान तक पहुंच जाए, उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना ही पड़ता है। हरियाणा में एक सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद मिले सुसाइड नोट में जातिगत भेदभाव सबसे प्रमुख कारण निकलकर सामने आया है। इसके अलावा हाल ही में मुख्य न्यायाधीश पर वकील द्वारा हमला किया गया। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की जघन्य तरीके से हत्या करना ये दिखाता है कि भाजपा सरकार में किसी भी पद पर बैठा या आम जीवन जी रहा दलित सुरक्षित नहीं है। तो दलित समुदाय अभी भी भेदभाव का सामना कर रहा है। ये बयान आया है टीकाराम जूली का, जिस तरीके से जो है दलित समाज के आईपीएस सुसाइड करने को मजबूर हुए। सुसाइड नोट में उन्होंने जिस तरीके की बातों का जिक्र किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बयान जो है टीकाराम जूली का सामने आया है और सुसाइड के बाद देश भर में अब इसको लेकर बहस भी छिड़ गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से अलर्ट। बंगाल सरकार कोल्ड ड्रिंक कप सिरप की बिक्री पर रोक लगाई है। खुदरा और थोक दवा विक्रेताओं को सिरप की बिक्री और भंडारण रोकने के निर्देश दिए हैं। 11 अक्टूबर को खुदरा विक्रेताओं के साथ बैठक होगी। BCDA ने एक एडवाइजरी में कप सिरप का भंडारण न रखने की चेतावनी दी है। ग्यारह अक्टूबर को खुदरा विक्रेताओं के साथ बैठक की जाएगी। BCDA ने एडवाइजरी में कप सिरप का भंडारण न रखने की चेतावनी दी है। इसको लेकर जो है बैठक होगी। मध्य प्रदेश के बच्चों की मौत से अलर्ट है बंगाल सरकार। जिस तरीके की मौत लगातार जो है मौतों के मामले सामने आए हैं,
न सिर्फ एक राज्य से बल्कि कई राज्यों से इस तरीके की तस्वीर सामने आई और अब इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है सरकार, अलर्ट मोड पर है। चलिए बढ़ेंगे आगे। मॉनसून की विदाई का अभी करना होगा इंतजार। जी हां, अभी भी थोड़ा और इंतजार करना होगा। ओडिशा में 3 दिनों तक जमकर बादल बरसेंगे। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। किसानों को अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा गया है। 22 अक्टूबर के आसपास नया सिस्टम संभव है और तब कहीं जाकर जो है मॉनसून की विदाई जो है हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी इंतजार करना होगा कुछ और मॉनसून की विदाई के लिए। तो 22 अक्टूबर के आसपास जो है एक नया सिस्टम संभव है और तब जाकर कहीं ना कहीं जो है मॉनसून की विदाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल मॉनसून की विदाई के लिए लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। इसको लेकर अलर्ट जो है जारी किया जा रहा है शासन की तरफ से। ओडिशा में 3 दिनों तक जमकर बादल बरसने वाले हैं, तो इसको लेकर मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं किसान जो हैं, क्योंकि कई बार वो भी परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्हें भी, और इसको लेकर किसानों को भी जो है कहा गया है कि वो अपनी फसलों को जो है सुरक्षित रखें। उनके लिए भी जो है एक तरीके से चेतावनी, अपील यहाँ पर की गई है, चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए यहाँ पर मॉनसून की विदाई के लिए फिलहाल और इंतजार करना होगा। बढ़ते हैं आगे, बात जयपुर की। जयपुर के दूदू से खबर, जिला स्पेशल टीम की बजरी माफिया पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। बजरी माफियाओं पर पुलिस का चाबुक चला है। अवैध बजरी का परिवहन कर रहे 9 डंपर जब्त किए गए हैं। एस्कॉर्ट करने वाली 4 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। मक्खमपुरा थाना इलाके में कार्रवाई हुई है। 1 दर्जन वाहन चालकों को गिरफ्तार किया गया है। एएसपी रजनीश पुनिया के सुपरविजन में कार्रवाई हुई है। तो अवैध बजरी का परिवहन कर रहे 9 डंपरों को जब्त किया गया है। एस्कॉर्ट करने वाली 4 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मक्खमपुरा थाना इलाके में कार्रवाई की गई है। दिल्ली में आधुनिक तकनीक से होगी यमुना की सफाई। जी हां, 1400 करोड़ रुपए की लागत से चमकेगी अब यमुना नदी। 8 एसटीपी का नवीनीकरण यमुना सफाई के लिए बीडीओ स्तर पर होगा। 10 मिलीग्राम प्रति लीटर। अमित शाह ने किया है एसटीपी का उद्घाटन। तो देखिए आधुनिक तकनीक से जो है अब यमुना नदी की साफ सफाई की जाएगी। बीओडी स्तर पर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर जो है को लेकर अमित शाह ने एसटीपी का भी उद्घाटन किया है। तो यमुना नदी की सफाई जो है आधुनिक तकनीक से होगी अब। और अब खबर बीजापुर से, जहां पर गंगालूर थाना क्षेत्र के ग्राम पिरिया में नक्सलियों की ओर से बिछाई गई आईईडी विस्फोट में एक मासूम आदिवासी बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं धमाके के साथ ही पूरे गांव में दहशत फैल गई। घायल बालक को मौके पर प्राथमिक उपचार देकर सीआरपीएफ के जवानों ने बीजापुर जिला अस्पताल रेफर किया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से ही गांव के लोगों में भय का माहौल है। इलाके में सर्च अभियान को तेज कर दिया गया है। सिरोही के आबू रोड से खबर, तरतोली मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कार्यक्रम में शिरकत की है। सिरोही के आबू रोड से खबर आपको बता रहे हैं। तरतोली मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर सचिन पायलट पहुंचे। 2 बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर सचिन पायलट का जोरदार भव्य स्वागत यहां पर किया गया। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर भी उनका अभिनंदन किया। पायलट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पत्रकारों से भी रूबरू हुए, पत्रकारों से बातचीत की। भाजपा सरकार पर इस दौरान जमकर प्रहार भी किया।
रायसिंह नगर के समेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव 70 एनपी बस स्टैंड के पास देर रात को भेड़ों के झुंड को राजस्थान रोडवेज की एक बस ने बुरी तरह कुचल दिया, जिसमें करीब 1 दर्जन भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई और 3-4 भेड़ें बुरी तरह से चोटिल हो गईं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस की रफ्तार काफी तेज थी और अंधेरा होने की वजह से भेड़ों का झुंड चालक को दिखाई नहीं दिया, जिससे चालक ने नियंत्रण खो दिया। और सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और हेड कांस्टेबल दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे। बस चालक मौके से बस को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में लिया और बस के अंदर सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित दूसरी बस मंगवाकर यात्रियों को रवाना किया गया। जैसलमेर के भड़ियाड़ा में वीआर स्कूल में पूर्व विद्यार्थी स्नेह मिलन एवं सखा संगम का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सेवानिवृत्त आईजीपी सवाई सिंह गुदारा ने शिरकत की। उनके साथ ही भड़ियाड़ा प्रधान सहित कई व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस विशेष अवसर पर वीआर स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकारी पदों पर पहुंचे विद्यार्थियों का मान सम्मान किया गया। इन पूर्व विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपा गुर्जर की अदालत ने चर्चित मणकसास मदनलाल हत्याकांड के 7वें आरोपी जोगेंद्र सिंह उर्फ कालू को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इससे पूर्व इसी मामले में 6 अन्य आरोपियों को भी 29 नवंबर 2023 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। मणकसास निवासी रामेश्वर ने 1 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका पुत्र मदनलाल जब 30 अप्रैल 2019 को मणकसास बस स्टैंड पर घर लौट रहा था, तभी 10 से 12 लोगों ने लाठियों, सरियों और चाकुओं से उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मदनलाल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। फरार चल रहे आरोपी जोगेंद्र सिंह उर्फ कालू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खबर झुंझुनू से, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को मंडरेला आएंगे। मंडरेला में पेयजल योजना के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों को अंतिम रूप देने में अब जुटा हुआ है। सभा स्थल के पास वाहनों की अलग अलग पार्किंग व्यवस्था भी की गई है। सीएम के दौरे के दौरान 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को मंडरेला आएंगे, जिसको लेकर जो है देखिए तैयारियां अंतिम चरण में है। तैयारियों को प्रशासनिक अधिकारी अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से 500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सर का प्रोग्राम मंडरेला के पास बन रहा है, जहां पे पिलानी रोड और यहाँ झुंझुनू से और मंडावा से जाने वाली रोडों का मेन बाईपास है। तो वहां पे ट्रैफिक व्यवस्था हमने और कलेक्टर साहब ने कल देख रखी है। बड़ी वाहनों की पार्किंग अलग करा रहे हैं, छोटी वाहनों की अलग करा रहे हैं। सभा स्थल से पास ही सबकी पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हमने आज ड्यूटी ऑर्डर बना लिया। जिले के तमाम थानाधिकारी